Namaskar and welcome in this video. This video having the chapter 3 of economics. The name of the chapter is money and credit, and this is the first part of this chapter. Money we use in our day-to-day life, and you can see the pictures. पिक्चर देख सकते हैं आप. इसमें आप देख सकते हैं कॉइन्स के जो हैं फोटोग्राफ्स दिए गए हैं. कॉइन्स वी यूज़, currency, notes we use, these all are the forms of money. And without money I think life will be very difficult, and everyone try to get as much as money in their life. Money is actually a resource which help us to satisfy our needs. So what is money, and how it is important for us, what are the forms of money, and what are the sources of that money, those who don't have the money, we will discuss in this chapter. So money, what is money? This is the first question. What is money? Let's know from this page, is there meaning of money is there or not. Money as a medium of exchange. So this is already written that money is a medium of exchange. Money is actually an acceptable form which help us to exchange goods, and it is also a store of value. So let's start a chapter. The use of money spans a very large part of our everyday life. Look around you and you would easily be able to identify several transactions involving money in any single day. Can you make a list of these? In many of these transactions, goods are being bought and sold with the use of money. In some of these transactions, services are being exchanged with the money. For some, there might not be any actual transfer of money taking place now, but a promise to pay money later. So there may be different conditions. For example, जैसे हम उधार लेते हैं तो हम उसको प्रॉमिस कर रहे हैं, जिससे हम उधार ले रहे हैं कि फ्यूचर में हम उसको क्या कर देंगे, उसका पैसा जो है उसको लौटा देंगे. उसके बाद जो है हम रुपया देकर जो है गुड्स परचेज कर लेते हैं. देन समटाइम वी यूज़ मनी टू गेट सर्विसेज. हम डॉक्टर के पास जाते हैं तो उसको पेमेंट करते हैं. तो देर आर डिफरेंट वेज इन विच मनी हेल्प अस इन आवर लाइफ. और आप भी दिन में कई बार जो है, मुझे उम्मीद है कि इसका यूज़ ज़रूर करते होंगे. सो हैव यू एवर वंडर व्हाई ट्रांजेक्शन्स आर मेड इन मनी. ट्रांजेक्शन मीन्स फाइनेंशियल लेन देन जो होते हैं, ट्रांजेक्शन्स कहलाए जा सकते हैं. द रीज़न is simple. A person holding money can easily exchange it for any commodity or service that he or she might want. आपने कभी सोचा है कि अगर रुपए की हम बात कर रहे हैं, मनी की बात कर रहे हैं, तो लोग जो हैं ट्रांजेक्शन इसमें ही क्यों करते हैं? क्योंकि मनी जो है एक्सेप्टेबल फॉर्म है जो कि ईज़िली हेल्प करती है हमें गुड्स एंड सर्विसेज को एक्सचेंज करने के लिए. Thus everyone prefer to receive payment in money and then exchange the money for things that they want. Take the case of a shoe manufacturer. He wants to sell shoes in the market and buy wheat. The shoe manufacturer will first exchange shoes that he has produced for money and then exchange the money for wheat. Imagine how much more difficult it would be if the shoe manufacturer had to directly exchange shoes for wheat without the use of money. He would have to look for a wheat growing farmer who not only wants to sell wheat but also wants to buy the shoe in exchange. That is, both parties have to agree to sell and buy each other commodity. So means two parties must be agree to buy and sell each other commodity. This known as double coincidence of wants. देखिए, जब से मनी आया है तब से जो है ट्रांजेक्शन्स जो है आसान हो गई हैं. पैसा दे के आप सामान ले सकते हैं, पैसा देकर आप सर्विसेज जो हैं वो एक्वायर कर सकते हैं. लेकिन पहले ऐसा नहीं होता था. तो जैसा एग्जांपल दिया गया है, शू मैन्युफैक्चरर है कोई, तो उसको वीट चाहिए और वीट वाला अगर शू चाहता है तभी कोई ट्रांजेक्शन जो है, तभी कोई बाय एंड सेल एक्टिविटी हो सकती है. तो ये डबल कोइंसिडेंस ऑफ वांट्स है कि शू वाले को पहले जो है वो किसान ढूंढना पड़ेगा जिसको जो है शूज़ की आवश्यकता हो, और तभी जो है कोई ट्रांजेक्शन हो पाएगी. सो इट इज़ वेरी डिफ़िकल्ट प्रोसेस, इट टेक्स लॉट ऑफ टाइम. देन what a person desires to sell is exactly what the other wishes to buy. सबसे बड़ी समस्या ये है कि जो मैं बेचना चाहता हूँ वो दूसरा जो है उसे खरीदने वाला होना चाहिए. इन अ बार्टर सिस्टम, ये बार्टर सिस्टम कहलाता है जिसमें गुड्स जो हैं डायरेक्टली
एक्सचेंज की जाती हैं विदाउट द यूज़ ऑफ मनी। जूते देकर अनाज ले लिया, अनाज देकर बर्तन ले लिए, ये प्रोसेस जो है बार्टर सिस्टम कहलाता है। तो बार्टर सिस्टम जो है मनी आने से पहले जो है काफ़ी पॉपुलर था। In contrast, in an economy where money is in use, money by providing the crucial intermediate step eliminate the need of double coincidence of wants। तो मनी ने क्या किया, जो डबल कोइंसिडेंस ऑफ वांट्स था, मतलब दो पार्टियां जो है बाय सेलिंग एक्टिविटी के लिए एग्री होंगी तभी कोई ट्रांजैक्शन हो पाता था, उसको ख़त्म कर दिया। तो मतलब एक काम आसान कर दिया रुपए ने। इट इज़ नो लॉन्गर नेसेसरी फॉर दोज shoe manufacturer and others to look after the buyer of their product। now it having no need। shoe maker जो है वो जूते बेचकर पैसे ले सकता है और अनाज ले सकता है। फार्मर जो है अनाज बेचकर पैसे लेकर खड़े खरीद सकता है। सो दिस प्रोसेस बिकेम वेरी सिंपल आफ्टर द अराइवल ऑफ मनी। चलिए, मनी एंड क्रेडिट की बात कर रहा था। मनी मैंने आपको बता दिया, मनी इज़ ए एक्सेप्टेबल फॉर्म इन विच पीपल कैन स्टोर वैल्यू एंड इट्स अ मीडियम ऑफ एक्सचेंज। दो चीज़ें हैं, मीडियम ऑफ एक्सचेंज एंड स्टोर ऑफ वैल्यू जो है वो होता है मनी। एंड क्रेडिट जो है ये बोरोवर एंड लैंडर ऑफ मनी के बीच में एक एग्रीमेंट होता है, जैसा कि उधार जो लिया जाता है या दिया जाता है उसके बारे में हम आगे चैप्टर में पढ़ेंगे। सो मनी इज़ ए एक्सेप्टेबल मीडियम ऑफ एक्सचेंज। एक्सचेंज मीन्स गुड्स एंड सर्विसेज, कुछ भी एक्सचेंज कर सकते हैं आप पैसे देकर। एंड स्टोर ऑफ वैल्यू, लेट्स वर्क दीज आउट। हाउ डज़ द यूज़ ऑफ मनी मेक इट ईजियर टू एक्सचेंज थिंग्स। तो सामान की अदला बदली या सर्विसेज हम परचेज़ कर सकते हैं आसानी से। जैसा कि अगर वो शू मेकर है, शू मैन्युफैक्चरर है, तो उसको जो है सर्च करना पड़ता है कि किसको जो है शूज़ की आवश्यकता है। लेकिन अभी ऐसा सिस्टम जो है नहीं है। आप अपना सामान बेचिए और पैसे दीजिए और पैसे देकर आप अपना जो भी उसकी डिमांड्स हैं पूरी कर सकते हैं। कैन यू थिंक द सम एग्जांपल ऑफ गुड्स सर्विसेज बीइंग एक्सचेंज्ड और वेजेस बीइंग पेड थ्रू बार्टर। तो बार्टर सिस्टम में देखिए काम के बदले अनाज स्कीम चली थी, नेशनल फूड फॉर वर्क प्रोग्राम आपने क्लास 9 में पढ़ा था। देन लोग गांव में खासकर आटा देकर चीनी ले लेते हैं ना। तो ये सब एग्जांपल हैं जो हमने पहले भी देखी। शू मैन्युफैक्चरर और पोर्टर और फार्मर ये गुड्स को एक्सचेंज करते थे। तो बार्टर सिस्टम पहले काफ़ी पॉपुलर था, लेकिन मनी आने के बाद लोगों को लगा कि मनी जो है दैट इज़ ईजी वे ऑफ एक्सचेंजिंग ऑफ गुड्स एंड सर्विसेज, तो इसलिए वो पॉपुलर हो गया। देन मॉडर्न फॉर्म्स ऑफ मनी। अब हम करेंगे सेकंड जो टॉपिक है इस चैप्टर में, मॉडर्न फॉर्म्स ऑफ मनी। तो मनी की मॉडर्न फॉर्म्स क्या है। मनी तो सबको पता लग गया होगा कि इट्स अ मीडियम ऑफ एक्सचेंज एंड स्टोर ऑफ वैल्यू। सो मॉडर्न फॉर्म्स ऑफ मनी में अगर हम देखते हैं तो एवरी कंट्री हैविंग सम फॉर्म ऑफ currency or use of coins and notes। So there are two basically forms of money। first one is currency and second one is deposits with bank। तो करेंसी में देखिए, करेंसी आपने देखी होगी, कॉइन्स देखते होंगे आप, 10 रुपीज़ का कॉइन है या 100 रुपीज़ का नोट है। सो दीज आर टू टाइप ऑफ करेंसी फाउंड इन इंडिया, पेपर नोट्स एंड कॉइन्स। एंड पहले के ज़माने में जो है, आज तो कॉइन्स पे भारत सरकार के द्वारा पब्लिश किए जाते हैं, लेकिन पहले जो है जो कॉइन्स थे राजा लोग अपनी उन पर पिक्चर्स बनवा दिया करते थे और लोग उसका यूज़ कर कर जो है ट्रांजैक्शंस किया करते थे। लेकिन अगर हम बात करते हैं कि ये एक्सेप्टेबल फॉर्म ऑफ मनी ही क्यों है, बिकॉज गवर्नमेंट ऑफ इंडिया जो है इसको करेंसी को ऑथोराइज़ करती है। अगर आपने नोट देखा होगा तो उस पर लिखा होता है कि मैं धारक को जो है ये रुपए देने का वचन अदा करने का वचन देता हूँ। तो ये जो लिखा होता है ये प्रॉमिस होता है गवर्नमेंट का। देन इन इंडिया द रिजर्व बैंक ऑफ इंडिया इश्यूज़ करेंसी नोट्स ऑन बिहाफ ऑफ द सेंट्रल गवर्नमेंट। तो सेंट्रल गवर्नमेंट जो है उसका आपको पता है रिजर्व बैंक ऑफ इंडिया है, सेंट्रल बैंक कह सकते हैं आप, जो कि नोट छापने का, करेंसी छापने का काम करता है। एज़ पर इंडियन लॉज नो अदर इंडिविजुअल और ऑर्गेनाइजेशन इज़ अलाउड टू इशू करेंसी। तो भारत में सिर्फ आरबीआई ही नोट छाप सकती है और कोई नोट नहीं छाप सकता है।
है ना। जैसे कि आजकल बहुत सारे प्रिंटर हैं, बहुत हाई क्वालिटी के प्रिंटर हैं, तो ऐसा नहीं कर सकते कि नोट छाप कर हम उसको चलाने लग जाएं, ऐसा दिस इज़ नॉट पॉसिबल और ये गैर कानूनी है। मोर ओवर द लॉ लीगलाइज द यूज़ ऑफ रुपी एज ए मीडियम ऑफ पेमेंट। और इसके अलावा जो कानून रुपए का यूज़ जो है वो क्या बनाता है, लीगल बनाता है। कोई जो है रुपया लेने से मना नहीं कर सकता है ट्रांजैक्शंस के लिए। अगर कोई मना करता है तो उसको जेल हो सकती है। हैंस द रुपी इज़ वाइडली एक्सेप्टेड एज ए मीडियम ऑफ एक्सचेंज। देन सेकंड फॉर्म ऑफ मनी है डिपॉजिट्स विद बैंक। अब डिपॉजिट्स विद बैंक क्या होते हैं, देखिए मान लीजिए किसी लेबरर की हम यहाँ पे एग्जांपल दे रहे हैं। लेबरर जो भी मजदूरी करता है मंथ के एंड में उसके पास जो पैसा आता है तो उसमें से कुछ हिस्सा जो है वो घर के खर्चों के लिए फैमिली नीड्स के रख लेता है। उसके बाद जो सरप्लस होता है, जो अधिक जो पैसा जिसकी ज़रूरत नहीं होती उसको बैंक में जमा करता है। तो ये आम लोगों का रूटीन है, सबका रूटीन यही है। तो वो बैंक में पैसा क्यों जमा जमा करेगा, बिकॉज देयर द मनी इज़ सेफ एंड ही विल गेट इंटरेस्ट ऑन द डिपॉजिट्स। तो इसलिए जो है जो कस्टमर है वो बैंक में जाता है, ठीक है, क्योंकि उसके पास जो जो एक्स्ट्रा कैश होता है वो उसको बैंक में जमा करवाएगा। तो जब बैंक में जमा करवाएगा तो बैंक से उसे फ़ायदा होता है, जो मैंने आपको बता दिया। अब बैंक को क्या फ़ायदा होता है कि बैंक जो है उस रुपए को लेता है और उससे वो भी अर्न करता है। लेकिन उससे पहले एक और चीज़ जो आपको बताना चाहता हूँ कि जो जो भी रुपया वट एवर अमाउंट इज़ डिपॉजिटेड इन द बैंक अकाउंट, और जिस भी व्यक्ति का वो अकाउंट नंबर है, तो उसको जब भी आवश्यकता होगी तब वो बैंक से उस रुपए को निकाल सकता है। सिंस द डिपॉजिट इन द बैंक अकाउंट कैन बी विड्रॉन ऑन डिमांड, दीज डिपॉजिट्स आर कॉल्ड डिमांड डिपॉजिट्स। तो डिमांड डिपॉजिट से कंफ्यूज होने की आवश्यकता नहीं है। डिमांड मतलब जब मुझे आवश्यकता होगी मैं अपने अकाउंट से वो पैसा निकाल सकता हूँ। वेन एवर आई डिमांड दैट मनी बैंक विल पे दैट मनी टू मी, इसलिए इसको डिमांड डिपॉजिट्स कहा जाता है। और आजकल जो है तकरीबन सारे लोग अपना रुपया जो है वो बैंक में रखते हैं। और बैंक में रखने का कारण जो है मैंने आपको पहले ही बता दिया कि वहाँ पर उनको इंटरेस्ट मिलता है और वो पैसा सेफ रहता है। यही डिमांड डिपॉजिट्स होते हैं। Demand deposits offer another interesting facility. It is this facility which lends it the essential characteristics of money. कि हम यहाँ पर चेक का यूज़ कर सकते हैं। वी कैन यूज़ चेक एज ए मीडियम ऑफ एक्सचेंज। मान लीजिए बहुत सारा अमाउंट किसी को पे करना है तो हम जो है वो चेक के फॉर्म में जो है पे कर सकते हैं। यू कैन सी द पिक्चर ऑफ चेक पेमेंट। तो ये चेक पेमेंट जो है इसका पिक्चर आप देख सकते हैं। अब चेक होता क्या है, चेक जो है एक पेपर होता है, इसे पेपर जिसमें इंस्ट्रक्शन लिखी होती है बैंक को कि पे द अमाउंट, स्पेसिफिक अमाउंट फ्रॉम द पर्सन अकाउंट टू द पर्सन इन हुज नेम द चेक हैज़ बीन इशूड। तो जिस व्यक्ति के नाम पर चेक इशू किया गया है उसको उतना पैसा दे दो जितना पैसा उस चेक में लिखा हुआ है। जैसे प्रेम कुमार यहाँ पर जो है उसको ये 57,000 रुपीज़ जो हैं पे कर दिए जाएं। किसके अकाउंट से पे कर दिए जाएं, वो अकाउंट नंबर यहाँ पे लिखा हुआ है और ये चेक पेमेंट होती है। और ये चेक देख लीजिए स्टेट बैंक ऑफ इंडिया का है, ब्रांच कोड है, ब्रांच का एड्रेस वहाँ रहेगा। और चेक देखिए आपको यूज़ करने ही होंगे फ्यूचर में। देख लो चेक नंबर होता है एक तो चेक नंबर सबसे फ्रंट में लिखा जाता है। तो इसका 362255 जो है चेक नंबर है। तो जब भी आप रेफरेंस देंगे तो इसी चेक नंबर का देंगे। तो लोग पेमेंट जो है वो चेक की फॉर्म में भी कर सकते हैं, ज़रूरी नहीं कि वहाँ करेंसी की आवश्यकता पड़ती हो। और इसके अलावा भी आजकल बहुत सारे मेथड्स हैं। आजकल तो प्लास्टिक मनी है, डेबिट कार्ड है, एटीएम कार्ड हैं जिसे हम कहते हैं, देन क्रेडिट कार्ड हैं। इसके अलावा गूगल पे और पानी कितने कितने सारे जो हैं वो पेमेंट पोर्टल हैं। तो ये जो पेमेंट पोर्टल्स होते हैं ये एक तरह से क्या करते हैं, हम अपने बैंक को जो अमाउंट जो है वहाँ से डायरेक्ट किसी को पे कर सकते हैं। तो इसीलिए हम कह सकते हैं कि ये डिमांड डिपॉजिट्स ही होते हैं बैंक में। जब हमें आवश्यकता होगी हम अपना पैसा बाहर निकाल सकते हैं। एंड द फैसिलिटी ऑफ चेक अगेंस्ट डिमांड डिपॉजिट मेक इट पॉसिबल टू डायरेक्टली सेटल पेमेंट विदाउट द यूज़ ऑफ कैश। तो हम कैश को यूज़ किए बिना भी जो है पेमेंट कर सकते हैं चेक से। लेकिन आजकल चेक के अलावा भी बहुत सारे अलग मोड हैं पेमेंट के जो हम यूज़ कर सकते हैं। आप देख सकते हैं, आप इनको पहचानते ही होंगे, जो बॉटम में कुछ पिक्चर्स दिखाई गई हैं। एंड
अलॉन्ग विद करेंसी दे कॉन्स्टिट्यूट मनी इन द मॉडर्न इकॉनमी। तो इसको भी एक प्रकार से मॉडर्न फॉर्म ऑफ मनी ही माना गया है। यू मस्ट रिमेंबर द रोल दैट द बैंक प्ले हियर, बट फॉर द बैंक there would be no demand deposits and no payment by checks against these deposits. The modern form of money, currency and deposits are closely linked to the working of the modern banking system। तो ये modern banking system है जो कि डिमांड डिपॉजिट्स के साथ में कनेक्टेड है। तो बच्चों आज के चैप्टर में इतना ही। आज हमने जो चैप्टर पढ़ा है इसमें हमने क्या क्या चीज़ें कवर की। बार्टर सिस्टम, व्हाट इज़ मनी, देन आई टोल्ड यू अबाउट द डिफरेंट फॉर्म्स ऑफ मनी, बार्टर सिस्टम की क्या समस्याएं थी, एंड इन डिटेल वी डिस्कस अबाउट द डिमांड डिपॉजिट्स या डिपॉजिट्स विद बैंक। इसमें चेक का जो क्वेश्चन है वो भी याद कर लीजिएगा। थैंक यू।